ओके, तो हम NCERT जीस्ट पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा, एक वीडियो बन गया, तो वीडियो 1 जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो चलिए हम इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। सो अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। The flow of water through well-defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called a drainage system. The drainage pattern of an area is the outcome of the geological time period, nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing, and the periodically of the flow. Last point नहीं समझा, by the way. An area drained by a river and its tributaries is called a drainage basin. The boundary line separating one drainage basin from the other is known as the watershed. The catchments of large rivers are called river basins, while those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds. There is, however, a slight difference between a river basin and a watershed. Watersheds are small in area, while the basins cover larger areas. Indian drainage system may be divided on various bases. On the basis of discharge of water orientations to the sea, it may be grouped into the Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage. They are separated from each other through the Delhi Ridge, the Arable Ridge, and the Sahad Ridge. Water divide is shown by a line in figure. Nearly 77% of the drainage area consisting of the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal, while 23% comprising the Indus, the Narmada, the Tapi, and the Mahi, and the Periyar systems discharge their waters in the Arabian Sea. तो हमारा जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है वो 77% है और अरेबियन सी का है 23%। ये याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटर शेड, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया are grouped into three categories: major river basins with more than 20,000 square km of catchment area. It includes 14 drainage basins such as the Ganga, the Brahmaputra, the Krishna, the Tapi, the Narmada, the Mahi, the Pennar, the Sabarmati, the Barak. तो ये सारे हमारा जो है मेजर रिवर बेसिन है। तो बाराक जो है देखो आसाम में था, वहाँ पर सॉरी अब बाराक आसाम में था, अरे भूल गया अभी तो। बाराक रिवर कहाँ पर था, अगले वीडियो में ही तो पढ़ा, कि देखना पड़ेगा इसको। तो ये भी एक क्या है, मेजर रिवर बेसिन है, यानी इसका जो ये है एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किमी से ज़्यादा है। ठीक है, तो 14 ड्रेनेज बेसिन ऐसा है जो मेजर ड्रेनेज बेसिन हमारा है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नर, साबरमती, बाराक। तो देखो सारे का नाम नहीं दिया गया, बट ये भी बाराक, साबरमती, पेन्नर ये सारे मेजर ड्रेनेज बेसिन है हमारा। तो याद रखिएगा, ऐसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र नाम से पता चलेगा, बट कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नर, साबरमती एंड बाराक ये भी मेजर रिवर बेसिन के अंदर आता है। नाउ मीडियम रिवर बेसिन विथ कैचमेंट एरिया बिटवीन 2,000 to 20,000 स्क्वायर किमी इनकॉर्पोरेटिंग 44 रिवर बेसिन सच एज द कालिंदी, द पेरियार, द मेघना एट्सेट्रा। ठीक है, तो मीडियम रिवर बेसिन के अंदर आते हैं लगभग 44 रिवर बेसिन। इनमें से एग्जाम्पल या फिर नोटेबल है क्या, कालिंदी, पेरियार एंड मेघना। कालिंदी, पेरियार एंड मेघना ये हमारा मीडियम ड्रेनेज बेसिन है, रिवर बेसिन है। नंबर 3 पे आता है माइनर रिवर बेसिन विथ कैचमेंट एरिया ऑफ लेस दैन 2,000 स्क्वायर किमी, इंक्लूड फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जैसे कि आपका लूनी हो जाएगा। ठीक है, now the Narmada and Tapi are two large rivers which are exceptions. They, along with many small rivers, discharge their waters in the Arabian Sea. On the basis of the mode of origin, nature and characteristics, the Indian drainage may also be classified into the Himalayan drainage and the peninsular drainage. Although it has the problem of including the Chambal, the Betwa, the Son, etc., which are much older in age and origin than other rivers that have their origin in the Himalayas, it is the most accepted basis of classification, right?
Now, drainage system of India. So, Indian drainage system consists of a large number of small and big rivers. It is the outcome of the evolutionary process of the three major physiographic units and the nature and characteristics of precipitation. Important drainage patterns. The drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic, the example of which are the rivers of northern plain. When the rivers originate from a hill and flow in all directions, the drainage pattern is known as radial. The rivers originating from the Amarkantak range present a good example of it. So, the rivers originating from Amarkantak range is an example of radial drainage pattern. When the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as trellis. When the rivers discharge their waters from all directions in a lake or depression, the pattern is known as centripetal. Right. Now, the Himalayan drainage. The Himalayan drainage system has evolved through a long geological history. It mainly includes the Ganga, the Indus, the ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. देखिए कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहेंगे, बट आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि TGT PGT ये जो एग्ज़ाम है ना, फैक्चुअल चीज़ें ही ज़्यादा पूछा जा रहा है. अब द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. सिंस दीज आर फेड बोथ बाय melting of snow and precipitation, rivers of this system are perennial. These rivers pass through the giant gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Besides deep gorges, these rivers also form V-shaped valleys, rapids, and waterfalls in their mountainous course. While entering the plains, they form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, flat plains, braided channels, and deltas near the river mouth. In the Himalayan reaches, the course of these rivers is highly tortuous, but over the plains they display a strong meandering tendency and shift their courses frequently. River Koshi, also known as the Sorrow of Bihar, has been notorious for frequently changing its course. The Koshi brings huge quantity of sediments from its upper reaches and deposits in the plains. The course gets blocked and consequently the river changes its course. ओके तो ये जो कोशी को जो चेंज करता है इसका पाथ, उसका कारण दिया गया कि कोशी ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इट्स अपर रीचेस एंड डिपॉजिट्स इन द प्लेन्स. द कोर्स गेट्स ब्लॉक्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स. राइट. Evolution of the Himalayan drainage. There are difference of opinion about the evolution of the Himalayan rivers. However, geologists believe that a mighty river called Shivalik or Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of the Himalaya from Assam to Punjab and onwards to Sindh, and finally discharged into the Gulf of Sindh near Lower Punjab during the Miocene period about 5 to 24 million years ago. The remarkable continuity of the Shivalik and its lacustrine origin and alluvial deposits consisting of sand, silt, clay, boulders, and conglomerates support these viewpoints. It is opined that in due course of time, Indo-Brahma river was dismembered into three main drainage systems: the Indus and its 5 tributaries in the western part, the Ganga and its Himalayan tributaries in the central part, and the stretch of the Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part. The dismemberment was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalayan, including the uplift of the Patwar Plateau, Delhi Ridge, which acted as the water divide between the Indus and Ganga drainage system. तो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में कि हरियाणा एंड दिल्ली ये जो एरिया है ये हमारा वाटर डिवाइड के तौर पर काम करता है, बट एक्चुअली स्टेट तो वाटर डिवाइड नहीं होते ना. तो वाटर डिवाइड एक्चुअली क्या है, पटवार प्लेटो या फिर दिल्ली रीज जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअली इंडस एंड गंगा के बीच का क्या है, हमारा वाटर डिवाइड है. लाइकवाइज द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप, तो ये वो होता है कि मीडिया गैप या कुछ पढ़ा था हमने, तो वो थिंक ये मालदा गैप ही होगा. लाइकवाइज द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप एरिया बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटो. हाँ, तो मालदा गैप और नॉट मीडिया गैप या फिर कुछ और दिया था. ठीक है, तो मालदा गैप between Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau during the mid-Pleistocene period diverted the Ganga and the Brahmaputra system to flow towards the Bay of Bengal. The river system of the Himalayan drainage. The Himalayan drainage consists of several river systems, but following are the major river systems. The Indus system. It is one of the largest river basins of the world, covering an area of 11,65,000 square km. In India, it is 3,21,289 square km and a total length of 2,880 km. In India, it is only 1,114 km.
The Indus, also known as the Sindhu, is the westernmost of the Himalayan rivers in India. It originates from a glacier near Bokharchu, okay, in the Tibetan region at an altitude of 4,164 meters in the Kailas mountain range. In Tibet, it is known as Singi Khamban or Lion's Mouth. After flowing in the northwest direction between the Ladakh and Jaskar ranges, it passes through Ladakh and Baltistan. It cuts across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. It enters into Pakistan near Chillar in the Dardistan region. Okay, the Indus receives a number of Himalayan tributaries such as the Sayok, the Gilgit, Jaskar, Hunja, Nubra, the Sigar, the Gusting, and the Dras. It finally emerges out of the hills near Attock, where it receives the Kabul River on its right bank. The other important tributaries joining the right bank of the Indus are the Khurram, the Tochi, the Gomal, the Bhibova, and the Sangar. They all originate in the Suleiman ranges. देखो ऐसे मैप में तो आपको कॉमन एटलास में ये सारे नाम ही नहीं मिलेंगे, इतने सारे रिवर्स का। तो एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ था मैप का, तो एक बार देखना पड़ेगा। मैंने एक पीडीएफ ये भी मिला था कि जहाँ पर टेलीग्राम में ही मिले हैं मेरे को, कि जहाँ पर एनसीईआरटी में जितने सारे मैप्स थे ना, उनको मैं पहले प्लान किया था कि यार इकट्ठा करूँगा, बट मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मेरे को रिसेंटली वो मिल गया, तो मेरे को करना नहीं पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा और सारे मैप्स को एक बार देख लूँगा जस्ट इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। नाउ द Bhibova एंड द संगार, तो ये भी दो रिवर से, दे ऑल ओरिजिनेट इन दी सुलेमान रेंजेस. The river flows southward and receives Panjnath, a little above Mithankot. The Panjnath is the name given to the 5 rivers of Punjab, namely the Satluj, Bias, Ravi, Chenab, and Jhelum. It finally discharges into the Arabian Sea east of Karachi. The Indus flows in India only through the Leh district in Jammu and Kashmir. तो ये याद रखने वाली बात है, द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. तो अभी तो लद्दाख अलग हो गया है ना, तो वो लद्दाख हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा. द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. द झीलम, एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द Pir in the southeastern part of the valley of Kashmir. It flows through Srinagar and the Ular Lake before entering Pakistan through a deep narrow gorge. It joins the Chenab near Jhang in Pakistan. The Chenab is the largest tributary of the Indus. हाँ, Chenab is the largest tributary of the Indus. देखो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यार इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट है. इट इज फॉर्म्ड बाय 2 streams, द चंद्रा एंड द भागा, व्हिच जॉइन एट टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश. मतलब डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है, काफ़ी अच्छी पीडीएफ है. ओके, तो ये जो केलोंग है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर एक जगह है जो कि टंडी, यहाँ पर चंद्रा एंड भागा मिलकर बना रहा है आपका चेनाब. ओके, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा. किसका नाम है? चेनाब का ही और एक नाम है. द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान. तो ले डिस्ट्रिक्ट में ही इसका लेंथ इतना है 1180 किलोमीटर. मतलब यहाँ पर बोला कि यार जो हमारा इंडस का जो है ये ओनली ले डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो कर रहा है. पर नाम ले यहाँ पर कहाँ था ये, यही तो. अच्छा, ये झीलाम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, झीलाम. तो झीलाम के बारे में, ये चेनाब के बारे में बात किया. ये चेनाब रिवर का लेंथ की जो है 1180 किलोमीटर है हमारे इंडिया में, फिर वो पाकिस्तान में एंटर करता है. द रवि इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस. इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रवि रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, सारे रिवर्स कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है. तो रोहतांग पास के पास से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं इन हिमाचल प्रदेश, जो कि कुल्लू हिल्स है यहाँ पर, एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट. चंबा वैली, नॉट चंबल, चंबा वैली ऑफ हिमाचल, चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड जॉइनिंग द चेनाब नियर सराई सिधू. इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजल एंड द धौलाधर रेंजेस.
The Bias is another important tributary of the Indus, originating from the Bias Kund near the Rohtang Pass at an elevation of 4,000 meter above the mean sea level. The river flows through the Kulu Valley and forms gorges at Katti and Larji in the Dhaladhar range. Okay, so Bias is another important tributary of the Indus, originating from the Bias Kund near the Rohtang Pass at an elevation of 4,000 meter above the mean sea level. The river flows through the Kullu Valley and forms gorges at Katti and Larji in the Dhaladhar range. It enters the Punjab plains where it meets the Satluj near Harike. The Satluj originates in the Rakas Lake near Mansarovar at an altitude of 4,555 meter in Tibet, where it is known as Langchen Khambab. It flows almost parallel to the Indus for about 400 km before entering India and comes out of a gorge at Rupar. It passes through the Sipkila on the Himalayan ranges and enters the Punjab plains. It is an antecedent river. It is a very important tributary as it feeds the canal system of the Bhakra Nangal project, the Ganga system. The Ganga is the most important river of India, both from the point of view of its basin and cultural significance. It rises in the Gangotri glacier near Gomukh in the Uttarkasi district of Uttarakhand. Here it is known as the Bhagirathi, जहाँ से ये originate हो रहा है. It cuts through the central and the lesser Himalayas in narrow gorges. At Devprayag, the Bhagirathi meets the Alaknanda. Hereafter it is known as the Ganga. देवप्रयाग में ये भागीरथी किसके साथ मीट कर रहा है? अलकनंदा से, और यहाँ से इसका नाम बन जाता है गंगा. The Alaknanda has its source in the Satopant glacier above Badrinath. The Alaknanda consists of the Dhaul and the Vishnu Ganga, which meet at Joshimath or Vishnuprayag. The other tributaries of Alaknanda, such as the Pindar, join it at Karnaprayag, while the Mandakini or Kali Ganga meets it at the Rudraprayag. तो जो भी 5 प्रयाग है वो उसके बारे में आपको जानना है कि कौन दो नदी मिलकर वो प्रयाग कहाँ पर मिल रहा है, ये जो भी है. The Ganga enters the plains at Haridwar. From here, it flows first to the south, then to the southeast and east before splitting into two distributaries, namely the Bhagirathi and the Hooghly. उसका नाम गंगा से भागीरथी हो जा रहा है और एक हो गया आपका हुगली. ठीक है. द रिवर हैज ए लेंथ ऑफ 2525 किमी. इट इज शेयर्ड बाय उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. तो कौन कौन सी स्टेट के ऊपर जा रहा है देखो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल. ठीक है. UUBB. Okay. The Ganga basin covers about 8.6 lakh square km area of in India alone. The Ganga रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया. तो लार्जेस्ट सिस्टम कौन सी है हमारा? गंगा है. हैविंग ए नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ रेस्पेक्टिवली. द सोन इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. सोन जो है ये गंगा का राइट बैंक, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ओके. The important left bank tributaries are the रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा. तो ये सीक्वेंस वाइज ही आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बार यूजीसी नेट में पढ़ा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था नेट तो ये सीक्वेंस पढ़ा था मैंने, नहीं मतलब गलत किया था. तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इस सीक्वेंस में है इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक में कौन है? सोन एक लौता इसका जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर है. रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, घाघरा, गंडक, उसके बाद कोसी एंड महानंदा. ठीक है. रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, देन ट्रिपल G, देन कोसी एंड महानंदा. ओके. रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड देन कोसी एंड महानंदा. The river finally discharges itself into the Bay of Bengal near the Sagar Island. The Yamuna, the westernmost and the largest tributary of the Ganga. Westernmost and largest tributary of the Ganga. The largest tributary कौन सा है? यमुना है. westernmost है, the westernmost and largest tributary है यमुना. Has its source in the Yamunotri glacier on the western slope of the Bandarpunch range. It joins the Ganga at Prayag, Allahabad. It is joined by the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken on its right bank, which originates from the Peninsula Plateau, while the Hindan, Rind, Sengar, Bharuna, etc. join it on its left. Water feeds the western and eastern Jamuna and the Agra canals for irrigation purpose. तो यमुना रिवर का फिर से राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे. तो उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है देखो? राइट बैंक में जो है वो है आपका चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन हो गया आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ
किसका, यमुना का। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपका हिंदन, रिंद, सेनगर, वरुणा। हिंदन, रिंद, सेनगर, वरुणा। हिंदन, रिंद, सेनगर, वरुणा। हिंदन, रिंद, सेनगर, वरुणा। ओके, join it on its left water feeds the western and eastern Jamuna and the Agra canals of for irrigation purpose। तो जमुना रिवर पे कौन सी कैनल लोकेटेड है, आगरा कैनल, या फिर आगरा कैनल कौन सी रिवर में लोकेटेड है, यमुना रिवर में। The Chambal rises near Mohau in the Malwa Plateau of Madhya Pradesh। Chambal, okay, Chambal River rises in the Mohau Plateau, Malwa Plateau, Mohau in the Malwa Plateau of Madhya Pradesh, northwards through a gorge upwards of Kota in Rajasthan, where the Gandhi Sagar Dam has been constructed। तो ये गंधी सागर डैम जो है यहाँ पर कोटा में लोकेटेड है राजस्थान का। और ये कौन सी रिवर पे बना है, चंबल रिवर पे है ना, गांधी सागर डैम फिर चंबल में ही होगा। फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्सेस डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइन्स दी यमुना। फिर वहाँ से चंबल जो है यमुना में मिलती है। द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रैवाइन्स। यहाँ पर हमने पढ़ा क्या कि चंबल है एक का चंबल रिवर हमने पहले नहीं पढ़ा ना, नहीं हम यमुना के बारे में पढ़ा कि हाँ इट इज जॉइन बाई चंबल। ये देखो यमुना जो है वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है और इट जॉइंस गंगा एट प्रयाग, इट इज जॉइन बाई चंबल द सीन बेतवा। तो इसका यमुना का एक ट्रिब्यूटरी है चंबल जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमने पढ़ा चंबल, सीन, बेतवा, केंट, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये यमुना का। अब चंबल जो जहाँ कैसे ओरिजिनेट होता है वो है मोहाव ऑफ नियर मालवा प्लेटो नियर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है। और ये कोटा राजस्थान में इसमें गांधी सागर डैम बनाया गया है चंबल रिवर के ऊपर। फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्सेस डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइन्स द यमुना। द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रैवाइन्स। ये भी याद रखिएगा। द गंडक कॉम्प्राइजेज 2 स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय। तो वही गंडक काली रिवर हमने पढ़ा था शायद वही आसपास। नेपाल हिमालय बिटवीन दी धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट एंटर्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइन्स द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। तो ये गंडक जो है गंडक रिवर ये सोनपुर बिहार के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में पटना नियर पटना या फिर सोनपुर क्या डिस्ट्रिक्ट होगा क्या पता नहीं। तो एक एट सोनपुर मतलब फिर जगह का नाम होगा नियर पटना, ये गंगा को ज्वाइन करता है। कौन, गंडक रिवर गंगा को सोनपुर में और पटना ज्वाइन करता है। द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचाचुंगो। कितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी PDF है। मैं तो बोलूँगा ऐसे थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह लग रहा है मेरे को, 2 ही की मिला ऐसे। द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचाचुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स। तो घाघरा जो ओरिजिनेट कर रहा है मापचाचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचाचुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स। मापचाचुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स। द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचाचुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज Tila, Seti and Berry. It comes out of the mountain cutting a deep gorge at Sisapani. The river Sarda, Kali or Kali Ganga joins it in the plain before it finally meets the Ganga at Chhapra। ठीक है, तिला, सेती एंड बेरी, देखो कितने सारे ट्रिब्यूटरीज का नाम है। इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन काटिंग ए डीप गॉर्ज एट सीसापानी। द रिवर शारदा, काली और काली गंगा भी बोला जाता है इसको, जॉइंस इट इन द प्लेन एरिया बिफोर इट फाइनली मेट्स द गंगा एट छपरा। द कोसी। तो इतना डिटेल तो आप याद नहीं रख पाओगे आई डोंट थिंक, तो ज़रूरी भी नहीं है इतना, क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बट पूछा भी जा सकता है, क्या पता। ठीक है, तो भाई जब यहाँ पर दिया हुआ है तो पढ़िएगा ध्यान से, जितना हो सके याद रख पाए तो अच्छी बात है। द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विथ इट्स सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन टिबेट व्हेयर इट्स मेन स्ट्रीम ओरुन राइजेज। तो ओरुन जो है कोसी का एक ट्रिब्यूटरी है और कोसी रिवर एक्चुअली एक एंटीसीडेंट रिवर है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयज इन नेपाल इट इज जॉइंड बाय द सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तामुर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर ओरुन। ओके,
The Ramganga is comparatively a small river rising in the Garhwal hills near Garrison. It changes its course to the southwest direction after crossing the Shivalik and enters into the plains of Uttar Pradesh near Najibabad. Finally, it joins the Ganga near Kanauj. The Damodar occupies the eastern margins of the Chotanagpur Plateau, where it flows through Rift Valley and finally joins the Hooghly. The Barakar is its main tributary. Once known as the Sorrow of Bengal, the Damodar has been now tamed by the Damodar Valley Corporation multi-purpose project. The Sarda और सरयू रिवर राइजेज इन द मिलान। सरदा अभी पढ़ा ना मैंने, काली को सरदा बोला जा रहा है और यहाँ पे सरजू बोल रहा है, फिर भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत सारे नेम्स है। तो ये देखो हाँ भी पढ़ा ना, ये पर ये द रिवर सरदा काली और काली गंगा, यहाँ पर बोल रहे सरदा और सरयू रिवर राइजेज इन द मिलान ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयज व्हेयर इट इज नोन एज गोरी गंगा along the इंडो नेपाल बॉर्डर। इट इज कॉल्ड काली और चौक, तो हाँ वही रिवर है। व्हेयर इट जॉइन्स दी घाघरा। द महानंदा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल्स। तो महानंदा जो है दार्जिलिंग हिल्स में ओरिजिनेट होता है। इट जॉइन्स द गंगा एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। तो क्या जो ये महानंदा है ये लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ वेस्ट बंगाल इन वेस्ट बंगाल गंगा का। द सोन इज लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेटिंग, हमने राइट बैंक भी पढ़ा था, तो राइट और साउथ सेम यहाँ पर बोला जा रहा है। लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेटो। सोन रिवर अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होता है। आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स एट द एज ऑफ द प्लेटो इट रीचेस अरहा वेस्ट ऑफ पटना टू जॉइन द गंगा। ओके, ठीक, गंगा सिस्टम हमने पढ़ा। अब देखो ब्रह्मपुत्र सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजिन इन द चेमांगदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। फ्रॉम हियर इट ट्रैवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किमी इन ए ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न टिबेट व्हेयर इट इज नोन एज द सांगपो which means the purifier। तो सांगपो का मीनिंग क्या है? प्यूरीफायर। द रांगपो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन टिबेट। इट emerges as a turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in the central Himalayas near Namcha Barwa. The river emerges from the foothills under the name of Siang or Dihong. It enters India west of Sadia town in Arunachal Pradesh। फ्लोइंग ये टाउन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का सादिया टाउन के सादिया टाउन में ये एंटर कर रहा है। सादिया टाउन के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहा है कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर। फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बीच दिबांग और सिकांग एंड लोहित। देयर आफ्टर इट इज नोन एज दी ब्रह्मपुत्र। तो किस नाम से एंटर किया इंडिया में, वो भी इंपॉर्टेंट है कि दिहोंग और सियांग, ठीक है। उसके बाद दिबांग एंड लोहित के साथ मिलने के बाद इसका नाम हो रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द आसाम वैली। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर दी बुरही दिहांग, Dhansiri south and Kalang, whereas the important right bank tributaries are the Subansiri, Kameng, Manas and Shankas. The Subansiri, which has its origin in Tibet, is an antecedent river. तो सुबनसिरी ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। तो देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कोसी एंटीसीडेंट रिवर था, सुबनसिरी ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी। अब देखो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब एंटर करे, कहाँ एंटर करे? धुबरी के थ्रू एंटर करे एंड फ्लोज साउथवर्ड इन बांग्लादेश। द तीस्ता जॉइंस इट ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम व्हेयर द रिवर इज नोन एज द यमुना। अब तीस्ता बांग्लादेश में जब तीस्ता ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रहा है तब इसका नाम चेंज होकर क्या हो रहा है? यमुना। और हमने और एक यमुना का नाम पढ़ा था क्या? गंगा का ट्रिब्यूटरी था यमुना। It finally merges with the river Padma, which falls in the Bay of Bengal. The Brahmaputra is well known for floods, channel shifting and bank erosion. This is due to the fact that most of its tributaries are large and bring large quantity of sediments owing to heavy rainfall in its catchment area. देखिए हमने ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी पढ़ लिया। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर दैन द हिमालयन वन। This is evident from the broad, largely graded, shallow valleys and the maturity of the rivers. The Western Ghats running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers, discharging their water in the Bay of Bengal and a small rivulet joining the Arabian Sea. Most of the major peninsular rivers except Narmada and Tapi flow from west to east.
The Chambal, the Sindh, the Betwa, Ken, Son originating in the northern part of the peninsula belong to the Ganga river system, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. The other major river systems of the peninsular drainage are the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Peninsular rivers are characterized by fixed course, absence of meanders and तो देखो peninsular rivers एक क्या है, इसमें कोई meanders नहीं है and no perennial flow of water. यहाँ पर जो वाटर है वो भी पेरिनियल नहीं है. द नर्मदा एंड द तापी व्हिच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस, दे मीट इन अरेबियन सी. The evolution of peninsular drainage system. Three major geological events in the distant past have shaped the present drainage system of peninsular India. Subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea during the early tertiary period. Generally, it has disturbed the symmetrical plan of the river on either side of the original watershed. Upheaval of the Himalayas when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent trough faulting. The Narmada and the Tapi flow in trough faults and fill the original cracks with their detritus materials. Hence, there is a lack of alluvial and deltaic deposits in these rivers. Silghat tilting of the peninsular block from northwest to the southeastern direction gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period. Okay, तो यहाँ पर है और एक बार पढ़ो अच्छे से, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, माइंड में कुछ और ही चला है. देखते हैं. जनरली इट हैज डिस्टर्ब. अच्छा पहले से पढ़ते हैं. द इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज पेनिनसुलर इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. थ्री मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. वन, सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक. तो ये तो हमने ठीक है ये अंडरस्टैंड किया था कि सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर, जो हमने द्वारिका या फिर द्वारका के बारे में हमने पहले वीडियो में, मतलब इसी पीडीएफ का पहले वीडियो जो बने थे वो वीडियो 1 में हम देखे थे, तो वो सबमर्ज्ड हो गया था. उसके कारण हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है बहुत खरा है और यहाँ पर इसलिए नेचुरल पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है. दूसरा क्या बोले, अपहीवल ऑफ द हिमालय व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्राफ फॉल्टिंग. ओके, तो हिमालय का अपलिट हुआ. द नॉर्मदा एंड द तापी फ्लो इन ट्राफ फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर detritus material. Since there is lack of alluvial and deltaic deposits in these rivers. Silghat tilting of the peninsular block from northwest to the southeastern direction gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period. तो ये सिलघाट टिल्टिंग बोलती है, ठीक है. स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुला, वही तो बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं सुना. तो स्लाइट टिल्टिंग मतलब थोड़ा सा टिल्ट है, इसीलिए तो हमारा जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट वो जो भी रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वो बे ऑफ बंगाल में आ रहा है. तो जो स्लोप है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक वो स्लोप है. अब देखो रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज. सो अब इंडिविजुअल रिवर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा हमें. There are a large number of river systems in the peninsular drainage. A brief account of the major peninsular river systems is given below. The Mahanadi rises near Siwaha in Raipur district of Chhattisgarh. तो महानदी रिवर कहाँ से राइज हो रहा है, छत्तीसगढ़ से, and runs through Odisha to discharge its waters into the Bay of Bengal. It is 851 km long and its catchment area spreads over 1.42 lakh square km. Some navigation is carried on in the lower course of this river. 53% of the drainage basin of this river lies in मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो कौन सी रिवर है ये, महानदी है ना. महानदी रिवर हमारा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रहा है. वाइल 47% लाइज इन उड़ीसा एंड उसके बाद उड़ीसा में भी है. ठीक है, तो ज़्यादातर पार्ट मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है, बट उड़ीसा में 47% है. सो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा स्टेट में है. सॉरी. द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. तो गोदावरी হচ্ছে लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा. इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल. इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इस सब में इसका ट्रिब्यूटरी है. किसका, गोदावरी का या फिर दक्षिण गंगा का. इट इज 1465 किमी लॉन्ग विथ कैचमेंट एरिया ऑफ स्प्रेडिंग ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किमी
49% of this lies in Maharashtra, 20% Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the rest in Andhra Pradesh. The Penganga and the Indravati, the Pranhita and the Manjra are its principal tributaries. तो इसका नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजरा are principal tributaries of the Godavari river. The Godavari is subjected to heavy floods in its lower reaches to the south of Polavaram, where it forms a picturesque gorge. तो यहाँ पर भी एक गॉर्ज है पोलाभरम में. It is navigable only in the deltaic stretch. The river after Rajamundry splits into several branches forming a large delta. तो गोदावरी रिवर में डेल्टा है. Now हाँ, क्योंकि ये इस अरेबियन सी में तो नहीं पड़ रहा ना, तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उसमें नहीं होते हैं, बाकी तो ठीक है. द कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. तो गोदावरी के बाद ही किसका रैंक है? कृष्णा का. ओके, ठीक है. कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर व्हिच राइजेस नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री. तो सह्याद्री हमने कहाँ पर आते, पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है. इट्स टोटल लेंथ इज 1401 किमी. द कोयना, द तुंगभद्रा एंड द भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी. तो कृष्णा का मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? तो तुंगभद्रा, कोयना, भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज. ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ द कृष्णा 27% लाइज इन महाराष्ट्र. देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, तो यही तो एक मिस्टेक हुआ, जैसे पर वो मीडिया गैप, वो मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो वो एक्चुअली मालदा गैप होगा. तो ये छोटे मोटे मिस्टेक्स है, बाकी काफ़ी अच्छी पीडीएफ है. 44% इन कर्नाटक एंड 25% इन आंध्र प्रदेश. द कावेरी रिवर इन ब्रह्मगिरी हिल्स 1341 किलोमीटर ऑफ कोगादू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक. ओके, तो हमने पहले महानदी पढ़े, उसके बाद आए गोदावरी, गोदावरी के बाद आए कृष्णा. तो गोदावरी का रैंक है फर्स्ट, देन आता है आपका कृष्णा, एंड उसके बाद आते हैं कावेरी. द कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी हिल्स 1341 किमी ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक. इट्स लेंथ इज 800 किमी एंड इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किमी. सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन. द रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर विथ comparatively less fluctuation than the other peninsular rivers. About 3% of the Kaveri basin falls in Kerala, 41% in Karnataka and 56% in Tamil Nadu. Its important tributaries are the Kabini, the Bhavani and the Amravati. The Narmada originates on the western flank of the Amarkantak Plateau at a height of about 1057 meters, flowing in a rift valley between the Satpura in the south and the Vindhyan range in the north. It forms a picturesque gorge in marble rocks and Dhuandhar waterfall near Jabalpur. After flowing a distance of about 1312 km, it meets the Arabian Sea south of Bharuch, forming a broad 27 km long estuary. Its catchment area is about 98,796 square km. The Sardar Sarovar project has been constructed on this river. The Tapi is the other important westward flowing river. It originates from Multai in the Betul district of Madhya Pradesh. It is 724 km long and drains an area of 65,145 square km. Nearly 79% of its basin lies in Maharashtra. Okay, so the Tapi is another westward flowing river. It originates from Multai in the Betul district of Madhya Pradesh. तो तापी जो है मुल्ताई से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पर है? बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है. इट इज 724 किमी लॉन्ग एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 65,145 स्क्वायर किमी. नियरली 75% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, 15% इन Madhya Pradesh and the remaining 6% in Gujarat. Luni is the largest river system of Rajasthan west of Aravalli. It originates near Pushkar in two branches, the Saraswati and the Sabarmati. तो ये साबरमती रिवर जो एक्चुअली ये ब्रांच है किसका? लूनी का, है ना. हुई जॉइन विथ ईच अदर एट गोविंदगढ़. तो ये सरस्वती एंड साबरमती दो रिवर मिल के बनाता है हमारा लूनी. हमको पता ही नहीं था, हम पढ़ते थे लूनी साबरमती अलग अलग से पढ़ते थे कि यार वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से, बट एक्चुअली सरस्वती एंड साबरमती मिलकर हमको बना रहा है लूनी, विच जॉइन विथ ईच अदर एट गोविंदगढ़. From here, the river comes out of Aravalli and is known as Luni. It flows towards the west till Telwara and then takes a southwest direction to join the Ran of Kutch. और ये जाकर कहाँ पड़ता है? Ran of Kutch में. The entire river system is ephemeral, यानी जब बारिश होता है तभी ये फ्लो करता है. अब देखो यहाँ पर दिया गया है साबरमती, माही, धंधर, सालिंदी, शरावती, भरतपुझा, पेरियर. तो कैचमेंट एरिया यहाँ पर दिया गया, सबसे बड़ा है माही का, उसके बाद आता है साबरमती, देन आता है आपका कालिंदी. तो ये ऑर्गेनाइज करके क्यों नहीं दिया गया मेरे को नहीं भी समझ में आया, देना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा कि यार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा. बट थोड़ा आप नोट डाउन कर सकते हो कि देखो सबसे आगे है ये
माही, देन आपका साबरमती आपका दो रैंक में आएगा साबरमती, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा ये भरत पूजा क्योंकि इसके ज़्यादा है 5397, तो भरत पूजा है 3। देन आपका आता है देन हाँ ये पेरियर, तो ये 4 नंबर पे होगा। देन देखो ये कालिंदी आपका 5 नंबर पे होगा। देन आपका धंधर होगा 6 एंड देन आपका होगा शरावती होगा 7। तो ऐसे पूछा तो नहीं जाते, मतलब ये कितना फेमस नहीं है, बट ये साबरमती, माही और पेरियार ये तो आपको पूछा जा सकता है। तो देखो माही सबसे ज़्यादा होगा, देन आपका साबरमती, यानी कैचमेंट एरिया माही का सबसे ज़्यादा है, देन साबरमती का है एंड देन पेरियार क्या है, ठीक है। और देन पेरियार क्या है या फिर उसके आगे है भरत पूजा या फिर जो भी भारत पूजा जो भी बोलेंगे आप, तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, तो वो है आपका ये 4 एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए कि पहले हो गया माही, देन साबरमती, देन भारत पूजा एंड देन पेरियार, क्योंकि यूजीसी नेट में अगर आया तो 4th रिवर का नाम शायद रहेगा। अब देखो स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स दी वेस्ट, और भी रिवर्स तो है वेस्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी हैव शॉर्ट कोर्सेज, फाइंड आउट द स्मॉलर रिवर्स ऑफ गुजरात। द शेत्रुंजी इज वन सच रिवर व्हिच राइजेज नियर डालखवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। तो ये शेत्रुंजी जो है ये गुजरात का रिवर है। दी भद्रा ओरिजिनेट्स नियर अनियाली विलेज नियर इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। द धाधर राइजेज नियर घंटर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। साबरमती एंड माही आर द 2 फेमस रिवर्स ऑफ गुजरात। तो साबरमती एंड माही, तो हमने पढ़ा कि साबरमती और सरस्वती मिल के बना रहा है हमारा लूनी रिवर। तो ये लूनी, ये देखो गुजरात में साबरमती, मतलब जब ओरिजिनेट हो रहा है तो शायद गुजरात से हो रहा है, तो वहाँ से, बट ये तो राजस्थान में है ना लूनी, अराबुली से फिर ये अलग है क्या, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा फिर मैप। यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं किया गया। अच्छा तो देखो फिर हम क्या कहाँ थे, अरे हाँ यहीं पे। द बोईतरन राइजेज फ्रॉम त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 670 मीटर। द काली नदी राइजेज फ्रॉम बेलगांव डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन द कारवार बे। द सोर्स ऑफ बेदती रिवर लाइज इन हुबली धारवाड़ एंड ट्रावर्सेस अ कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर। द शरावती is another important river in Karnataka flowing towards the west. The Saravati originates in Shimoga district of Karnataka and drains a catchment area of 2,209 square km. Goa has 2 important rivers which can be mentioned here. One is Mandovi and the other is Juari. ठीक है, सॉरी, गोवा हैज 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स, मांडोवी एंड जुआरी, याद रखिएगा, मांडोवी एंड जुआरी, ये आपका गोवा का रिवर है, ठीक है। यूजुअली हम पढ़ते नहीं है क्योंकि गोवा एक इतनी सी छोटी सी स्टेट है, उसमें कौन सी रिवर रहता है, तो वो ऐसे मजाक पकड़ रहा हूँ मैं। तो मांडोवी एंड जुआरी, ठीक है, ये आपका गोवा का रिवर है, मांडोवी एंड जुआरी। अब देखो यहाँ पर फिर से दिया गया कि कहाँ किसका ज़्यादा है, तो ये पॉइंट में क्यों दिया गया ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका, देखो सबसे ज़्यादा आपका हो गया पेन्नार का, ठीक है, पेन्नार का। देन आपका होगा ब्राह्मणी का, पेन्नार ब्राह्मणी। देन आपका होगा सुवर्णरेखा, देन आपका पल्लार एंड देन बोईतरानी। तो ये भी आपको याद रखना होगा सीक्वेंस वाइज, क्योंकि नंबर तो आप याद नहीं रख पाओगे, तो सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला रैंक में क्या आएगा, ब्राह्मणी आपका पहला है, सॉरी गलत बोल दिया, ब्राह्मणी आपका 2 में है, पेन्नार आपका पहला है क्योंकि 55 है, तो पेन्नार आपका 1 है, देन ब्राह्मणी आपका 2 है, ठीक है, देन सुवर्णरेखा आपका 3 एंड पालार आपका 4, बोईतरानी आपका 5। इसको सीक्वेंस वाइज ही देना चाहिए था कि पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है, ठीक। तो हमने पढ़ा क्या, कैचमेंट एरिया इन 5 रिवर में से, मतलब ये बोल सकते हो, और छोटा रिवर तो नहीं है, छोटा रिवर ही होगा शायद, कि इसलिए शायद पॉइंट दिया गया है, ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग छोटे रिवर से, बट इनमें से सबसे ज़्यादा है पेन्नार का है, देन आपका ब्राह्मणी का है, देन आपका सुवर्णरेखा का है। तो पेन्नार ब्राह्मणी सुवर्णरेखा, पेन्नार ब्राह्मणी सुवर्णरेखा, PBS, पेन्नार ब्राह्मणी सुवर्णरेखा। देन आपका पाल्लार, तो PBS देन PB, ओके, PBS PB मिडिल में S, ओके, याद रखेगा, याद रख पाएगा। P में होगा आपका पेन्नार,
PB ब्राह्मणी, देन फिर से S सुवर्णरेखा एंड अगेन PB यानी पार्लर एंड देन बैतरणी। तो ऐसे आप कुछ भी करके याद रखना पड़ेगा आपको। पेन्नर, ब्राह्मणी, देन सुवर्णरेखा, देन अगेन P यानी पार्लर, देन बैतरणी। तो ये कुछ रिवर्स है जिसका हमने कैचमेंट एरिया के अनुसार सीक्वेंस बनाया। नाउ केरला हैज ए नैरो कोस्ट लाइन। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला भरतपुझा, हमने पहले नाम पढ़ा था, राइज इज नियर अन्नामलाई हिल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज पोनानी। तो इसी भरतपुझा रिवर को बोला जाता है पोनानी रिवर। पोनानी का नाम मैंने शायद सुना था। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 5397 स्क्वायर किमी, कंपेयर इट्स कैचमेंट एरिया विद दैट ऑफ द शरावती रिवर ऑफ कर्नाटक। द पेरियार इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, तो पोन्नानी देन पेरियार, पोन्नानी या भरतपुझा ये होता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला एंड देन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, देन आता है आपका पेरियार दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। इट्स कैचमेंट एरिया इज 5243 स्क्वायर किमी। यू कैन सी दैट देयर इज ए मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द भरतपुझा एंड द पेरियार रिवर्स। यस, दिस इज 5397 एंड इसका 5443। तो बाय द वे वो हमारा कॉन्सर्न नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट हो गया आपका पेरियार या पोन्नानी या भरतपुझा, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया आपका पेरियार। अनदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज द पंबा रिवर। ठीक है, और भी एक रिवर है जो है पंबा रिवर विच फॉल्स इन द भेमनाद लेक आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ कोर्स ऑफ 177 किलोमीटर। तो ये भेमनाद लेक काफ़ी फेमस है, तो इसलिए ये रिवर भी फेमस है कि भेमनाद लेक में कौन सी रिवर जो है एंड होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका केरला का पंबा रिवर। ठीक है, याद रखना पड़ेगा भेमनाद एंड पंबा रिवर। कुछ मैच तो नहीं बन रहे बट ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा कि पंबा रिवर केरला का है जो कि भेमनाद लेक में पड़ता है। तो केरला का हमने 3 रिवर का नाम यहाँ पर पढ़ा, क्या क्या, एक तो हो गया भरतपुझा या फिर पोनानी, दूसरा हो गया आपका पेरियार एंड तीसरा हो गया आपका पंबा रिवर। तो आई होप यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो गया। यस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। तो देखिए जीस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी भी है, तो हम कभी पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टीचिंग लाइन के अलावा अगर आप बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ऑफिसर रैंक में तो वहाँ पर पॉलिटी पूछा जाता है। तो मैंने कुछ देर पढ़ रहा था, मैंने एक बार रीडिंग लगाया भी पॉलिटी का, वो क्या है लक्ष्मीकांत का कुछ वीडियोस भी देखे मैंने। ओकुल बोल के एक चैनल था, वहाँ पर सारे वीडियोस मैंने देखा। बट जो भी है, जब पढ़ रहा था तब तो समझ में आया, बट अभी कुछ याद नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे कभी बाद में। एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो हम क्लाइमेट को एक एक वीडियो में हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर खत्म हो गया, तो इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्लाइमेट को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।